So back to classes after 4 to 5 days of recess बोलते हैं, चलो वैसे recess 10-15 मिनट वाले ब्रेक को बोलते हैं, हम 5 दिन के ब्रेक को let us take it as a recess. So we are back after a short recess, 5 days recess. So in 5 दिनों में did you all revise the chapters? Those are going to come in your duties. Yes, sir. Very good. Yes. Very good. All the chapters you have revised, 1, 2, 3 and 4 and 5 is on the verge to complete. For 5th chapter हम लोगों ने चालू रखा है, and today I think we'll be completing the chapter also. So revision process, keep on doing revision as much as you can. Use the assignments that has been given to you. Assignments करना, NCERT textbook करना, don't leave anything, don't edit. अपना दिमाग कम लगाना कि ये नहीं आ सकता है, ये आएगा, पता चला जो नहीं आने का था वही आ गया. So keep on doing everything. You just go on revising. After we complete this chapter 5th one, we will have time or else I'll arrange an extra class for revision also, if possible in the afternoon. अगर होगा तो जरूर करेंगे. But let us first complete this chapter 5 and then we can move on to the revision part also. जितना करवा पाएंगे and जितना हम लोग कर सकते हैं. And you can keep on asking your doubts in every class 5 days, and you have kept your doubts with you just to ask me. So after the class, आज की क्लास बाद कल की क्लास में, you can ask me your doubts because just a minute. Because we will be completing the chapter 5th and we would be on revision. इस चैप्टर के बाद कोई नया चैप्टर आपके एग्जाम तक हम नहीं पढ़ाएंगे. So we will be revising all those chapters, and once you are offline during your exams also, we will have even 2 hours at least minimum to revise the maths paper. So paper style you know, course you know, keep on doing that. So let us now move on chapter 5 that we were doing. In our previous class, we were on chapter number 5. It will be offline, beta. Your exams are offline. You will have to come to school to give your exam. Rest details you will be getting in your class groups. So Euclid's geometry हम लोग ये कर रहे थे. And in our previous class, we moved on to the introduction of the Euclid's geometry. थोड़ा सा history पे गए थे Euclid's का. And we had written statements and axioms. I think we had completed statements and axioms. इतने हम लोगों ने अपने previous class में complete कर लिया था. Is it? Yes, sir. Yes. And today we will be moving on to the postulates. Postulate means those universal truths related to geometry. Postulates. और यहाँ पर 5 postulates we will be doing. और ये 500 के 500 postulates. दो ऐसा नहीं है कि यूक्लिड ने 5 ही postulate लिखे हैं. तुमको फिर से एक बार रिकॉल करवा दे. उसकी बुक एलिमेंट्स में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे 9th से रिलेटेड है वो हमें बताए गए हैं. उनमें से ये 5 हमें खास दिए गए हैं पोस्टुलेट्स. वी हैव लर्न 7 स्टेटमेंट्स. आई थिंक वी हैव आल्सो लर्न 7 एक्सियम्स. ऐसा नहीं कि साथ साथ ही थे. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, लॉट्स ऑफ एक्सियम्स. हाँ बेटा. सर एक्सियम्स नहीं हुआ था सर. बाकी एक्सियम्स मैंने लिखवा दिया बेटा. आई थिंक नो सर, स्टेटमेंट हुए. खाली स्टेटमेंट्स हुए थे. यस सर. कोई बात नहीं. स्टेटमेंट्स एग्जाम्स लिख लेते हैं. नॉट एन इशू. कोई बात नहीं. तो चलो हम वापस आ जाते हैं. इसमें हेडिंग ही चेंज करना है. नॉट एन इशू. वी नीड टू लर्न एग्जाम्स. चलो एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स, ये 2 चीजें हम लोगों को आज करनी है. These 2 things we will be doing. And axioms means these are the all universal truths. बच्चा क्या हुआ? कुछ नहीं. So these are those universal truths. ये सारे वो universal truth statements है. Those are related. आप बीच में बंद करो, डिस्टर्ब नहीं करो. माइक्रोफोन बंद.
So, as I told you in a previous class also, the statements that has been given by Euclid are universal truth. उसको हम लोग prove करने के चक्कर में नहीं जाते हैं. They were said at that time and they were experimentally, it was very clear that these are perfectly correct. So axioms, such statements, such universal truths, those were related to mathematics, पूरा का पूरा mathematics. It can be algebra, it can be geometry, it can be pure mathematics. उनको हम axioms बोलते थे. और जो universal truths, वही statement अगर सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड आ जाता है तो उसका स्पेशल नाम हो जाता है postulates. So universal truths related to geometry, postulates. Universal truth related to mathematics, it includes everything. Geometry, algebra, you can say pure mathematics, सबको axioms मिलेंगे. So he gave some axioms that were to be understood and that is to be compared with the modern time also. तो हम लोग एक एक axioms उसके लिखते जाएंगे और उन सारे axioms को हम लोग मॉडर्न लाइफ के साथ भी रिलेट करते जाएंगे जैसे स्टेटमेंट्स को कर रहे थे हम लोग. So our heading is axiom. So let us write axiom number 1. And these axioms and statements we have to take directly from NCERT textbook. हम अपना लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते because these are the statements that Euclid gave. तो उसके statements को हम चेंज कर ले इतनी ताकत हमारे में नहीं है. So we will have to take it from directly from the textbooks. First one, things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Are equal to one another. The first axiom. समझते हैं इसको, बोलना क्या चाह रहा है. Things which are equal to the same thing. मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, मान लो A and C, ऐसी दो चीजें हैं. And A is equals to B, C is also equals to B. Things which are equal to the same thing. These two things are equal to the same thing. Then these two are also equal. A is equals to C. If A is equals to B, C is also equals to B. Same thing को दोनों इक्वेट हो रहे हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे. देखो समझ में आ रहा बेटा पहला एग्जाम उसका? Yes, sir. Yes. Clear? चलो. Then second exam. Sir, I don't understand. क्या नहीं समझना है बेटा? अगर ऐसा हो A equals to 5, B is also equals to 5, so can I say A is equals to B? Yes, sir. हाँ same चीज बेटा. Yes, A sir. is equals to B, that is 5. C is also equals to B, so A is also equals to C. Same thing है. देखो बच्चा. Yes, sir. Clear? अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया? Yes, अभी sir. समझ में आया बेटा? Okay, done. Sir, actually- Exam number 2. Sir, A और C हाँ की बेटा जगह तुम्हारा आवाज एकदम. हेलो. सर A और C की जगह नंबर्स भी हो सकते हैं. हाँ बेटा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते यार. लिखना हमें ऐसा है कि कोई भी दो चीजें हैं A और B, दो अलग अलग चीजें. ये राम है और ये श्याम है. राम के पास 5 रुपए है, श्याम के पास भी 5 रुपए है. तो हमने ये नहीं बोल सकते कि राम और श्याम दोनों के पास 5 रुपए है तो दोनों के पास सेम अमाउंट है. यस सर. तो वही चीज है बेटा. ये A की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर ये B ना लिख के यहाँ 5 लिखते, यहाँ 5 लिखते तो लिख सकते ना A इज इक्वल टू C. है ना, कर सकते ना बेटा. कहाँ गए, आ जाओ. तुम हाँ बोलोगे तभी आगे जाएंगे ना बेटा. हाँ. सो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, these are the two things which are equal to the same thing. वही रिपीट कर रहे हैं वत्सल, सुनो. Here in mathematics, which are equal to the same thing. So these are the two things A and B. They are equal to the same thing. दोनों की वैल्यू सेम है 5. दोनों की वैल्यू अगर 5 है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो ही जाते हैं. This is what is axiom 1 says.
things which are equal to the same thing are equal to one another. So these things are equal to one another. हमने यहाँ पर 5 को फिक्स नहीं करके एक दूसरा वैल्यू फिक्स कर दिया, दैट इज b. इट कैन बी एनीथिंग, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है ना भाई, हम तो कुछ तो फिक्स तो कर नहीं सकते. तो अगर दो चीजें एक ही चीज के साथ इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे. अभी क्लियर है? सर एग्जाम का मीनिंग सर फिर से समझो, आई नॉट अंडरस्टूड. बेटा 3 बार मैंने समझा दिया है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो. आइदर यू आर नॉट लिसनिंग और यू आर जस्ट हैरेसिंग. ये तीसरी बार मैंने बता दिया है. सर ये थोड़ा नहीं नेटवर्क का इशू है तो बेटा चेक करो. सर एग्जाम वन नहीं पूछ, एग्जाम का मीनिंग पूछ रहा हूँ. एग्जाम का मीनिंग? अरे कहाँ थे यार, बोर्ड पे लिख के बताया था. व्हाट आर एग्जाम? all the truth, all the statements that has Euclid has given related to mathematics, those are called axioms. जो statements ये वो दे रहे हैं, ये related to mathematics दे रहे हैं, तो वो axioms. और अगर वो statements related to geometry हो, तो those are called postulates. ओके सर, थैंक यू. वत्सल axiom स्टार्ट कर दिया वत्सल, तब तक तुम axioms का मीनिंग नहीं पूछ रहे हो. जब axioms और postulates समझाया तभी पूछना चाहिए था. सर तभी मैं पूछ रहा था कि भाई समझ में आया, नहीं आ रहा था सर, तभी मैंने बोला. अभी भी तुम्हारा आवाज कट कट के आ रहा है बच्चा, कुछ समझ नहीं आ रहा. आधी चीजें कट जा रही है, आधी चीजें आ जा रही है. ये तो वर्ड पकड़ में आ रहे हैं, बोल के समझ में आ रहा है. किसी ऐसी जगह पर बैठो बेटा जहां पर नेटवर्क क्लियर हो, तुम्हारा साउंड सुनाई दे. कट रही है तुम्हारी आवाज. सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, the whole is an equal. If equals are added to equals, the whole is equal. The whole is equal. If equals are added to equals, मतलब कोई भी दो नंबर जो इक्वल है उसमें कुछ और इक्वल चीजें डाली जाए तो टोटल भी फिर से इक्वल होगा. एग्जांपल, 5 इज इक्वल टू 5, दोनों इक्वल है. और इन दोनों में अगर इक्वल चीज ऐड की जाए, अगर हम ऐसा लिखे कि 5 + 2 और इधर भी लिखे 5 + 2, तो लास्ट में ये दोनों भी इक्वल होंगे. द होल वुड बी इक्वल. 7 वुड बी इक्वल टू 7. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? टू इक्वल नंबर्स, दो इक्वल नंबर्स थे, दोनों इक्वल नंबर में इक्वल चीजें ऐड की गई. इधर भी +2 किया मैंने, इधर भी +2 किया. द होल इज एन इक्वल. तो 5 + 2 is 7, 5 + 2 is 7. द होल बिकम्स इक्वल. देखो ये समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर. एवरीबॉडी? Yes, sir. यस. Done. Then third. Yes. Then third. If equals are subtracted from equals, again the remainder are equal. Same उसी का subtraction में. If equals are subtracted from equals, the remainder are equal. एकदम सेम टू सेम ही है. हमारे पास दो नंबर है, 7 इज इक्वल टू 7, दो इक्वल नंबर से उसमें से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए. मान लो हम दोनों तरफ -2 करते हैं, तो अब जो रिमाइंडर बचेगा 7 - 2 is 5, 7 - 2, then both will be equal. Same as if equals are added to equals, the whole is equal, and if equals are subtracted from equals, again the whole is equal. देखो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो. Yes, sir. Then fourth one. Things which coincide with one another. With one another are equal to, just देख ले एक बार statement, are equal to one another. Are equal to one another. This one is almost same as number 1. Things which are equal to the same thing are equal to one another. और यहाँ पर things which coincide with one another are equal to one another. Almost दोनों का सेम है. अगर हम ऐसा बोल दें
A is equals to B. You can say C is also equals to B. You can say D is also equals to B. तो इन सब को हम लिख सकते हैं कि A is equals to B is equals to C is equals to D. सेम चीज ही है, दे कोइंसाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों भी इक्वली होंगे. नंबर 1 एंड नंबर 4 इज ऑलमोस्ट सेम. देखो बच्चा, समझ में आ रहा है? 4. Yes, sir. सर यानी फोर्थ एक स्टेटमेंट click- मल्टीपल क्वांटिटीज होगी ना? हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम. ओके. चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चले, जगह नहीं है मेरे पास बच्चा. रिटर्न सर. ओके, चलो डन. ये जाने दे, रब कर दे बच्चा. यस Yes. चलो जाने देते हैं. ओके, देन एग्जाम नंबर 5. We are on axiom and we are on number 5. The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. मतलब पूरा का पूरा जो है वो उसके एक पार्ट से बड़ा ही होता है. And we know it. Suppose we are given with a cake. इतना बड़ा केक है और उसमें से एक हम टुकड़ा काट के निकाल ले, वो टुकड़ा छोटा सा हो गया ऐसा. So this whole cake is greater than the part. This one is a part of the whole cake. So the whole will be always greater than the part. And this gives the concept of fractions. हम लोग जो पढ़ते हैं फ्रैक्शंस अपने छोटे क्लासेस में, वो मॉडर्न टाइम में वो है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसको 4 पार्ट में रख दिया, एंड दिस इज द शेडेड पार्ट. So this shaded part is always smaller than the bigger one, and this part is 1/4, 1/4, और ये पूरा का पूरा 1. So 1 is always greater than 1/4. The whole is greater than the part. देखो बच्चा, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Okay, done. चलो then, हाँ पूछो. Sir, this part, sir, if the circle is there, yes, then, sir, if we take a very bigger one part, then, sir, then we can tell that अरे the पूरे अरे मेरे बच्चा, ये बिगर पार्ट हो गया, ये एक छोटा पार्ट हो गया, ये एक सबसे बिगर पार्ट हो गया, तो भी पूरे केक से ये तो छोटा ही है ना. Okay, sir, I understand. और इस पूरे केक से ये भी छोटा है. सो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. चाहे वो पार्ट तुम जितना भी बड़ा पार्ट लो, क्या फर्क पड़ता है? होल से तो कम ही होगा ना. ये पूरा का पूरा एक बड़ा स्क्वायर था, उसमें से तुम इतना पार्ट निकालो या खाली एक छोटा सा पार्ट इतना ही निकालो, फर्क क्या पड़ता है? द होल इज ऑलवेज ग्रेटर. ठीक है? यस सर. Yes, sir, yes, sir. चलो देन थिंग्स. हाँ बच्चा बोलो. चलो नहीं है कुछ. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग. डबल ऑफ द सेम थिंग. Things which are double of the same thing are equal to one another. Are equal to one another. Things which are double of the same thing are equal to one another. मान दो यहाँ पर एक हम लोगों ने एक पोटैटो लिया और अब इसका डबल करके हमने 2 पोटैटो ले लिए, तो ये दोनों तो चीज तो सेम ही रही ना, है तो पोटैटो ही. जो डबल कर रहे हैं वो तो यूनिट बता रहा है कि एक नहीं है 2 है. अब पहले 1 पोटैटो था, अब 2 पोटैटो हमने ले लिए हैं, और 2 पोटैटो में चीज तो बदल नहीं रही है ना, पोटैटो का पोटैटो ही रह रहा है ना. सो दैट इज व्हाट ही इज गोइंग, ही नीड्स टू से कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग. एक थिंग था हमारे पास 1 पोटैटो,
और उसके बाद हमने डबल कर दिया, इट इज 2 पोटैटो आर इक्वल टू वन अदर, मीन्स द पोटैटो रिमेन्स द पोटैटो, द नंबर कैन चेंज। ये चेंज हो सकते हैं, चीजें नहीं बदलती है। मैथमेटिक्स में इसको तुम बोल सकते हो कि ये हमारे पास x है, दिस इज 2x, लेकिन वो x तो सेम ही रहेगा। द वैल्यू ऑफ x डज नॉट चेंज, ओनली द कंडीशन इज चेंजिंग दैट दिस इज डबल, बाकी वैल्यू ऑफ x रिमेन्स ऑलवेज सेम इन द सेम कंडीशन। देखो बच्चा, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Done. And the seventh one, just इसी का वर्जन है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। अब ये डबल था, अब वो हाफ कर रहा है। थिंग्स विच आर halves of the same thing are equal to one another, are equal to one another. Things which are halves of the same thing are equal to one another. फिर से यही है, एक पोटैटो था, एग्जाम्पल एकदम इजी है, उसका हाफ कर दिया, तो अब मेरे पास हाफ पोटैटो बचा, तो पोटैटो पोटैटो तो सेम ही रहा। और उसको मैथमेटिकली दिस इज x बाई 2, तो ये x और x की वैल्यू में थोड़े कोई चेंजेस होगा, x रिमेन्स द सेम। देखो ये समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. चलो Yes. तो फिर गिव अ क्लिक, जस्ट गिव अ क्लिक एंड हियर वी कंप्लीट द एक्सियम्स। Yes. डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये जाने दिया। एंड नाउ postulates, let us move on to the postulates. And these all axioms and postulates are given in the textbook. हम कोई नया चीज नहीं करा रहे बेटा, because this chapter is related to a famous mathematician Euclid. So one cannot change, even I cannot change the statements that has been given by him, the postulates that has been given by him, उसी की लैंग्वेज में लिखना होता है। तो हम भी बुक से देख कर ही लिख रहे हैं, बट जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि वो करना क्या चाह रहा था या बोलना क्या चाह रहा था, दैट इज ऑल। बाकी कुछ नया चीज नहीं है, यू कैन राइट इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। So next we are moving on to postulates. Number 1. And very simple postulates here given. A straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line can be drawn from any one point to the other point. और एकदम सिंपल सी चीज है। A straight line can be drawn from one point, मान लो ये एक पॉइंट है, to the other point ये पॉइंट है, और इन दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ही बन सकती है। और हम यही पढ़ते हैं मॉडर्न में भी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ लाइन lying between 2 points. तो उसने स्टेटमेंट अलग दिया कि a straight line can be drawn from any one point, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ही बन सकती है। You can draw only one straight line between two given points, and that we also learn. वो लाइन सेगमेंट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। देखो ये समझने के लिए और कुछ समझना है, इट्स अ सिंपल हियर दिया। These are related to geometries. क्लियर है बच्चा ये वाला पोस्टुलेट? Yes. Yes, sir. Sure. These are simple ones. ज्योमेट्री से रिलेटेड है, एकदम सिंपल ही बोला है उसने। The second postulate is a terminated line can be produced indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. Indefinitely मतलब terminated line, मतलब वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी। और बोलते हैं कि इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इनडेफिनेटली, इनफाइनेटली। मतलब प्रोड्यूस करना मतलब अगर हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं।
हम इधर से भी उसको बढ़ा के आगे तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक? टिल इंफिनिटी। हम इधर भी बढ़ा सकते हैं उसको, कहाँ तक ले जा सकते हैं? टिल इंफिनिटी। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर प्रोड्यूस करना है, उसको लंबा करके देखना है, तो वी कैन प्रोड्यूस इट इन बोथ द डायरेक्शन टिल इंफिनिटी। पूरे इंफिनिटी तक हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। देखो ये समझ में आया बच्चा? सर आई वांट टू Yes, आस्क sir. हाँ बोलो सर। सर लाइन सेगमेंट एक्सटेंड कैसे हो सकता है? बट वो तो सर फिक्स पॉइंट्स नहीं रहते हैं। प्रोड्यूस करना है। अगर उसको लाइन सेगमेंट तो फिक्स हो गया मेरा बेटा, ए और बी के बीच में ही लाइन है। उसके बाद मैंने कैसी लाइन बनाई? डॉटेड लाइंस बनाई कि अगर मुझे उस लाइन को बढ़ाने की इच्छा है तो लाइन सेगमेंट नहीं बढ़ रहा है, वो लाइन बढ़ रही है दोनों तरफ, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ऑन बोथ द साइड। लाइन सेगमेंट तो 5 सेंटीमीटर का है तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसको थोड़े हम 7 सेंटीमीटर बना देंगे। लेकिन अगर उसको प्रोड्यूस करना है तो वो कर सकते हैं। तो सर वो लाइन डॉटेड होगी ठीक है, जो हम एक्सटेंड करेंगे। हाँ डॉटेड ही होगी ना बेटा, ये डॉटेड लाइन ही होगी। हमारा लाइन तो यहीं पर था, वो डार्क में था। ये लाइन तो डार्क में है, बाकी उधर जो हम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो डॉटेड है। ओके सर, थैंक यू। Sir, if we extend 3 centimeter, sir, if we extend 3 centimeter from B, then sir, we can do that B is equals to 3 centimeters and we mark that point C. ओके, क्या Sir, फर्क we पड़ता can है? do हमारा लाइन सेगमेंट ओरिजिनली क्या है? ए बी है ना, ए बी तो 5 ही रहा ना। उसके बाद तुमने 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ इफ इट इज रिक्वायर्ड। बट आवर ओरिजिनल लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो लंबा होकर 8 सेंटीमीटर नहीं बन जाएगा। ठीक है सर इनफाइनाइट That's all. कैसे? प्लेन खत्म हो गया। जितनी दूर तक ले जाना ले जाओ, यहाँ से जितनी दूर तक लेना ले जाओ। अभी हम बोलेंगे Sir, तुम इनफाइनाइट तक उसको ड्रॉ करते ही जाओ, तो तुमको पता ही नहीं है कहाँ पर रुकना है, तो जा ही दो। सर बट अगर प्लेन खत्म हो गया तो? क्या प्लेन? अरे प्लेन खत्म होने का मतलब डॉटेड लाइंस इनफाइनाइट बताते हैं। तुमको इस प्लेन के अंदर के तक थोड़े जाना है। कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस करनी है तो प्लेन के बाहर सोचना पड़ेगा, प्लेन के अंदर थोड़े। इंफिनिटी का मतलब क्या है? दैट इज इंफिनिटी। अब वो तुम बोलोगे सर पेपर में इंफिनिटी कैसे दिखाते हैं? तो पेपर में इंफिनिटी खाली डॉटेड लाइन को करके दिखा देते हैं, खाली एक एरो मार दोगे यहाँ से यहाँ कि ये जा रहा है और ये जा रहा है। ओके सर। चलो क्वेश्चन देन पोस्टुलेट नंबर 3। A circle can be drawn with any center and any radius. A circle can be drawn with any center and any radius. मतलब अगर हमें एक सर्कल बनाना है तो हम कहीं पर भी सेंटर ले सकते हैं और किसी भी रेडियस का हमको बोला हो हम उतने रेडियस का बना सकते हैं। दिस इज माय सर्कल, हमने यहाँ सेंटर लिया, 2 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया तो 2 सेंटीमीटर। हमने यहाँ बनाना है, हमने बड़ा लिया, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है तो 3 सेंटीमीटर ले लो। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर टेकिंग एनी पॉइंट एज सेंटर एंड एनी रेडियस दैट हैज बीन डिफाइंड। उसका कोई फिक्स नहीं है कि हमको सिर्फ 2 सेंटीमीटर की ही पूरी दुनिया में सर्कल बनाना है। वी कैन मेक ऑफ 2 सेंटीमीटर, इफ वी आर आस्क्ड 3 सेंटीमीटर, इफ वी आर आस्क्ड 4 सेंटीमीटर रेडियस, वी कैन ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस टेकिंग अ पॉइंट एनीवेयर वी वांट। सेंटर अपनी मर्जी से ही लेते हैं, फिक्स करके नहीं दिया जाता है आपको। देखो इसमें कुछ पूछना है? सर हम 0.5 सेंटीमीटर कैसे बना सकते हैं रेडियस? बिल्कुल बना सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं। भले तुम्हारे कंपास पे नहीं बनेगा, बाकी ऐसे कंपास अवेलेबल है जिससे तुम 0.1 सेंटीमीटर का सर्कल भी बना सकते हैं। तुम्हारे कंपास पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा कंपास उतना बड़ा नहीं देता, मिनिमम 1 सेंटीमीटर का गैप देते हैं वो लोग। बाकी तुम 0.5 का भी बना सकते हो, क्यों नहीं बना? हमें तो सर्कल बनाना है, सर्कल, एक सर्कल। ये ऐसे सर्कल बन जाएगा तो ये 0.5 भी हो सकता है, और छोटा करोगे तो 0.1 रेडियस भी हो सकता है। वो तो कुछ भी बना लो, तुमसे नहीं बन रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज योर इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग यू। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स अगर सपोर्ट कर रहे हो तो तुम किसी भी रेडियस का बना सकते हो। चलो ठीक है यहाँ तक? यस सर।
and then fourth one, Yes, sir. and then fourth one. All right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. To one another. All right angles. Right angles मतलब 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री इक्वली होते हैं भाई, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। जितने भी 90 डिग्री होंगे सब एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ऐसे करके ये एंगल ए दिया है, दूसरा ये एंगल बी दिया है, साइज लाइन का बड़ा हो जाए, ये सी दिया है, तो सब 90 डिग्री है। तो यू कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल को लाइन से कोई मतलब ही नहीं होता है। ऑल द एंगल्स वुड बी इक्वल इफ ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल आर राइट एंगल्स। देखो ठीक है। यस सर। यस सर। Yes. चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज वी नीड टू राइट द फिफ्थ पोस्टुलेट आल्सो। उसके लिए जगह चाहिए बच्चा। सर टेकन। ओके बेटा। Written, sir. ओके बेटा। चलो फिर। एंड द फिफ्थ पोस्टुलेट काफी लंबा है, काफी बड़ा पोस्टुलेट है, बहुत ज्यादा राइटिंग आती है उसमें, बट द थिंग आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी। And the fifth postulate is, if a straight line falling on two straight lines, this is fifth one, if a straight line falling on two straight lines, if a straight line falling on two straight lines makes the angles on the same side of it, makes the interior angles on the same side of it, makes the interior angles on the same side of it, on the same side of it, taken together, less than two right angles, less than two right angles, then the two straight lines, then the two straight lines, if produced indefinitely, if produced indefinitely, meet on that side, on which the sum of the angle is less than two right angles, on which the sum of the two angles, the sum of the angles is less than two right angles. This much big postulate. ये सबसे लंबा postulate, but it is very easy and you will be understanding it very easily if I relate it to our modern world. अभी समझ में आ जाएगा. If a straight line falling on two lines, हमारे पास दो lines हैं and a straight line is falling on it. This is a line. We are given with two lines, suppose L and M, and N is a line. So if a straight line falling on two lines, ये दो lines हैं, उसके ऊपर में गिर रहा है, makes the interior angles on the same side of it. Interior angles मतलब ये दोनों interior angles हुए और इधर के ये दोनों interior angles हुए.
These two are interior angles, that is the angles lying between the two lines, and these two are interior angles. Taken together, less than two right angles. Two right angles means 180 degree. एक right angle 90 degree, दो right angle 180 degree. So if these two angles taken together, दोनों को add करेंगे, and this is less than 180 degree. If this is less than 180 degree, then the two straight lines is produced indefinitely meet on that side where it is less than. मतलब अगर ये less than 180 degree और इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, तो ये उसी तरफ मिलेंगे, ये लाइन आके यहाँ मिल जाएगी. The side on which the sum of the two interior angle is less than 180 degree. जिस तरफ sum of interior angles would be less than 180 degree और लाइन को उस तरफ प्रोड्यूस किया जाए तो वो वहां कर मीट कर जाएगा. जिस तरफ ग्रेटर देन 180 है तो ये लाइन को प्रोड्यूस करोगे तो ये तो ऐसे आगे आगे जाता जाएगा. They will never meet if it is greater than 180, but if it is less than 180, उस तरफ में वो दो लाइन मीट कर सकती है if they are produced on that side. मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं. तुमको अगर याद हो तो दो पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है और इस साल भी पढ़ोगे. टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, और ये दो इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं अगर वो लाइंस पैरेलल है. अगर वो लाइंस पैरेलल नहीं है देन इट इज नॉट 180 डिग्री. इसीलिए यहां पर उसने वो पैरेलल लाइंस वर्ड नहीं यूज किया. ही यूज इफ अ लाइन फॉलिंग ऑन टू लाइन, तो दोनों लाइन पैरेलल है ऐसा नहीं बोला. तो अगर पैरेलल नहीं बोला था तो ये दो लाइन, और जिस तरफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होगा वो उस तरफ जाके लाइन मिल जाएगी. और हमारे कंसेप्ट में क्या दिया गया है मॉडर्न वर्ल्ड में? हाँ बोलो. Sir, why we fall, sir, we have done, sir, we have taken the two lines horizontally, then sir, why we take one line vertically? अरे मेरे भाई पढ़ो उसका स्टेटमेंट पढ़ो. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, हम यूक्लिड का पोस्टुलेट समझा रहे हैं बच्चा, अपना घर का नहीं बता रहे हैं. द पोस्टुलेट में बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो दो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ले लिए. नो स्क्रीन एकदम क्लियर है मेरा बच्चा. स्टेटमेंट लिखा है तो सर हम दो तीनों के तीनों वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे. तीनों का तीनों वर्टिकली लोगे ऐसे के तो एक ये लाइन इसके ऊपर में फॉल कहाँ कर रहा है मुझे ये बताओ. फॉल करना मतलब क्या? उसको इंटरसेक्ट करना है. ये तीनों वर्टिकली लोगे तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और तीनों हॉरिजॉन्टली लोगे तो कहाँ से इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है मतलब. हाँ ओके. So if a straight line is falling on two lines, the side on which the sum of the interior angle is less than 180 degree, वो वहां पर मीट कर जाएगा. जिधर greater than 180 है वो ऐसा फैलता जाएगा. मॉडर्न कंसेप्ट में we take it as sum of interior angles to be 180, तो वो पैरेलल लाइंस लेते हैं. अगर पैरेलल लाइंस नहीं होंगे तो सम 180 नहीं होगा. ये हमने अपने मॉडर्न टाइम में पढ़ रहे हैं अभी भी. तो यूक्लिड का दिया हुआ ये पोस्टुलेट और ये ऑलमोस्ट सेम है. वी हैव जस्ट डिराइव्ड इट फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट. इवन यूक्लिड हैज गिवन अस दिस कंसेप्ट कि वो पैरेलल लाइंस होंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे. बट अभी उसने जो बोला है दिस लेस देन 180 मीट्स ऑन दैट साइड, और हम उसका कंसेप्ट मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे यूज करते हैं. देखो अभी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चे. No, sir. We have to do Clear? नहीं बेटा ड्रॉ नहीं करना. ये तो हम तुमको समझा रहे. यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनीथिंग. ड्रॉइंग जो भी कर रहे हैं हम तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं. हाँ बेटा. सर जो आपने तो हमें लिखना है. हाँ ये लिखना है और ये फिगर शो कर दो. ये लिखने की जरूरत है. ये तो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हम रिलेट कर रहे हैं कि आज के टाइम में हम लोग कैसे यूज करते हैं. बाकी यूक्लिड तो ये बोल के गया. ठीक है चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो. So sir, we have to write this. हाँ ये सारी चीजें नोटबुक में आनी चाहिए. That diagram. हाँ ये डायग्राम आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए. हाँ. ये उसका मीनिंग है. Done. चलो डन.
you can directly come to exercise 5.1. अब अपनी NCERT की बुक खोलो. We will be dealing with the exercise 5.1 और सिर्फ इस चैप्टर को सिर्फ NCERT में सही करना है. You don't have to do from RD Sharma. RD Sharma में सिर्फ इसके MCQs सॉल्व कर लेना. Rest nothing you have to do. इस चैप्टर का होमवर्क में सिर्फ इतना ही होता है. MCQs from RD Sharma, rest everything from NCERT textbook. So let us discuss. और ये डिस्कशन नहीं होगा. द आंसर यू विल राइट. हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे बिकॉज कंप्लीटली इट्स अ थ्योरी. जहां पर सम करने की बारी आएगी आई विल हेल्प यू. सो एक्सरसाइज 5.1. Which of the following statement, question number 1, are true and which are false? Give reason for your answers. Only one line can pass through a single point. Is it true or false? False. False. Infinite lines False. can Then be. what is the infinite number of lines can pass through it? चलो हो जाएगा. There are infinite number of lines which pass through two distinct points. True or false? False. 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 Perfectly. Only one line. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. A Yes, sir. terminated line can. It is Sir, true. true. हम लोगों ने अभी पढ़ा वो postulate. True. Exactly. That is as per the postulate number 2 of Euclid's. Then, if two circles are equal, then the radii are equal. True or false? Yes, sir. True. True. That's चलो true. ट्रू में ले सकते हैं. ओके ओके. इन द गिवन फिगर AB is equals to PQ, PQ is equals to XY, then can we say AB is equals to XY? Yes, sir. Yes, sir. It is true. कौन सा एक्सियम यूज Yes. किया गया है? 4. एक्सियम नंबर 4 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं. ऑलमोस्ट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल और थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. दोनों चलता है. So then question number 2. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined? What are they and how might you define them? Parallel lines. Definition तुम दे सकते हो. Parallel lines are those lines which never meet each other and the distance between them is always same. यही होता है ना parallel lines. किसी का माइक्रोफोन ऑन है, not interested in the gossip, please switch off. Mute करो. Give the definition for each of the following. Parallel lines, perpendicular lines. इसका definition आते हैं कि नहीं आते? बताइए. तो छोटे बच्चे 4th 5 में भी पढ़ाते थे. What are parallel lines? Parallel lines are those lines which never meet each other and the distance between them is always same. Then perpendicular lines. Perpendicular lines means two line segments which make an angle of 90 degrees. Hello? Yes, sir. हाँ, कोई कुछ Yes, बोल रहा है sir. बीच में. हो जाएगा ये definitions? Yes, sir. Yes, sir. Line segment, Yes. radius of a circle, a square, normal definitions जो हम लोग को मॉडर्न वर्ल्ड में लिखते हैं वही लिखना है. इसमें कोई यूक्लिड का स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है. हम लोग अपने डेफिनेशंस लिखेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B. पहला स्टेटमेंट ये है. दूसरा, there exists at least 3 points that are not on the same line. Do this postulate contains any undefined term? ऐसा लगता है कि कुछ और इसमें जरूरत होना चाहिए. आधी चीजें बताई गई है, पूरी चीजें नहीं बताई गई है. Yes, sir. क्या है वो आधी चीजें? This postulate has undefined terms. Yes, they have undefined terms. Are these postulates consistent? No, these are not consistent. ऐसा कोई postulate हमें उससे पढ़ाया ही नहीं था. बट उसमें अभी जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी. Then only we can say that the postulates are consistent. Do they follow from Euclid's postulates? No. No. They don't follow Euclid's postulates unless and until the undefined terms उसमें आ जाए. कोई भी postulate यूक्लिड का ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई भी चीज की कमी रह गई हो. His statements were universally true. That means जितनी चीजें एक स्टेटमेंट के लिए चाहिए उतनी चीजें उसमें थी.
यहाँ पर देयर आर अनडिफाइंड टर्म्स, तो ये यूक्लिड का पोस्टुलेट हो ही नहीं सकता है. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन लैंग्वेज. कितना टाइम हो गया? Oh, it's 11:58. So let us stop here. You just do homework exercise 5.1 question number 1 to 3. चलो let us take the attendance ले लें, otherwise वो टूट जाएगा बच्चा. We will stop here. Ninth A. Parikshit, are you there? Parikshit. Parikshit. नहीं है. ध्येय भालोडिया. ध्येय भालोडिया. Okay. Meshri. Meshri. Present, sir. Meshri. Okay. Vaishnavi Chandiara. Vaishnavi Chandiara. नहीं है. काव्य दत्रोजा. Present, sir. काव्य दत्रोजा. Okay. Deepal. Present, Deepal. sir. Present. Okay. Himanshu. Himanshu. Present, sir. Okay. Grusti. Grusti. Present, sir. Okay. Present, sir. Dhruvish. Dhruvish. Present, sir. Okay. Rudraraj Si Jadeja. Present, sir. रुद्रराज सी जाडेजा. ओके, आ गए रुद्रराज. वेरी गुड. बहुत दिनों के बाद आए. चलो गुड. विकल्प जैन. Present, sir. ओके. जिज्ञासा जायसवाल. Present, sir. ओके. भव्य. Present, sir. ओके. आदित्य. Present, sir. ओके. तुषार मौर्य. तुषार मौर्य. चलो एब्सेंट. मन मेहता. मन मेहता. Present, sir. ओके. डेनिल. डेनिल. Present, sir. ओके. तन्वी पंड्या. Present, sir. ओके. जानवी पटेल. Sir, जानवी. ओके. क्रिश पटेल. Present, sir. क्रिश पटेल. ओके. प्रकृति पटेल. प्रकृति पटेल. Present, sir. ओके. ऋतुजा पाटिल. Present, sir. ऋतुजा पाटिल. ओके. हेत रावल. Present, sir. हेत रावल. ओके. प्रांशु. प्रेजेंट सर. प्रांशु. ओके. तमन्ना. Present, sir. ओके. दीप्सी. Present, sir. ओके. ईश्वा. 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 चलो एब्सेंट. सत्यम सिंह. सत्यम सिंह. चलो एब्सेंट. ऋषि. Present, sir. ऋषि. ओके बेटा. ध्रुविन. 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 चलो एब्सेंट. जयराज सिंह झाला. जयराज सिंह झाला. चलो एब्सेंट. समर्थ गुप्ता. Present, sir. ओके. वत्सल. Present, sir. ओके. प्रांजल. Present, sir. प्रांजल. Present, ओके. sir. हिरविता. हिरविता. Present, sir. Okay, beta. Now you all can leave the meeting. Thank you. Have a good day. Bye, Take care. sir. And be safe. Thank you. Thank Bye, you, beta. sir. Bye. Bye, beta. You all can. Bye, beta.